Good morning, dear students. In today's session, we will study about the mesh analysis. So, see here, mesh analysis. What we will do in the mesh analysis, we will apply KVL to find out unknown current. मेश एनालिसिस का सिंपल डेफिनेशन है मेश एनालिसिस वी विल यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी लूप बाय यूजिंग KVL. हम क्या करेंगे यहाँ KVL अप्लाई करेंगे और what we are saying in the mesh analysis we are supposed to find out unknown current. अब यहाँ पे सुपर मेश नहीं दिया है बट आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो बिकॉज दैट इज ऑल्सो कमिंग इन अवर सिलेबस. उसके लिए मेरे पास अलग और PPT है बट इफ I will take same PPT again and again you guys will feel bored. Just because of that I am showing you this now. After that when we will study about the super mesh I will show you that also. Just I am giving you small idea about super mesh. मेश एनालिसिस क्या किस लिए हम यूज कर रहे हैं करंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. कैसे कर रहे हैं बाय यूजिंग KVL. तो सुपर मेश क्या होता है सुपर मेश इज ऑल्सो लाइक दिस एनालिसिस ओनली व्हाट इज द डिफरेंस देयर यू विल गेट वन नॉन करंट. मतलब यहाँ पे करंट का कहीं भी वैल्यू दिया हुआ नहीं है. करंट का वैल्यू जहाँ पे भी जो भी लूप का आपको फाइंड करना है यू विल फाइंड बट इन द सुपर मेश यू विल गेट वन नॉन करंट. वहाँ पे एक लूप का करंट का वैल्यू ऑलरेडी दे विल प्रोवाइड यू. दैट सर्किट वी विल से एज अ सुपर मेश. बाकी जो भी प्रोसेस है फॉर द मेश फॉर द सुपर मेश इज एग्जैक्टली सेम. We will apply here KVL to find out the value of unknown current. So see here, we are saying in the mesh analysis, we are having some steps to do to solve value of unknown current. So these steps I have given here, you can see. What we are saying, first of all, we are supposed to check how many loops are there. Why? Because we are supposed to give direction to each current. How you will give? You will decide. You will decide. So what I am saying, if they are giving the voltage value, तो तुम्हें वहाँ का पॉजिटिव निगेटिव दे आर गिविंग. सो अकॉर्डिंगली जहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्टेज का उसे जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड है ऑफ कोर्स in electrical circuit you will get only passive component resistor inductor capacitor but according to Ohm's law according to our Kirchhoff voltage law current law node analysis Thevenin superposition everywhere you will get voltage current and resistor. तो हमारे पास component क्या है सिर्फ resistor. तो मैं क्या बोल रही हूँ if you are having the voltage terminal they are giving that time what you will do whatever the value of resistor we are connecting to that voltage. If we are connecting to the positive terminal you will start from that terminal you will give resistor का वो terminal you will give as a positive then you will get positive negative positive negative positive negative तुमको direction मिलता रहेगा. So see here firstly we will see how many loops are there then we will assign direction to all the currents. मतलब जो भी जितने भी currents है you will give the directions for every loop. Now we will apply KVL to each closed loop. क्योंकि हमें पता है KVL कहाँ applicable है only for closed loop. Open loop के लिए KVL apply नहीं है KCL होता है. Now हमने KVL अप्लाई कर लिया है. अभी हमें इक्वेशंस जो है we got equation in the form of voltage और we can write V equal to IR. तो तुम्हें करंट और रेजिस्टर के इसमें प्रोपोर्शन में you will get the equation. Now we are supposed to find unknown current. तो जो भी करंट find out करना है you will find. So here when we will solve these equations these linear equations you can solve by using calci. You can solve linear equation by your any method which we are using to solve linear equation or you can use directly matrix.
If you guys are aware about the matrix determinant, you can use that also. तुम matrix use करके भी solve कर सकते हो वो linear equation. You will get the value of current, unknown current. अब यहाँ पे दो loop है तो you will get two unknown I1 I2. या फिर तुम्हें पता है इंजीनियरिंग कैल्सी में वी कैन सॉल्व लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली, तो तुम वो कैल्सी से भी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज इन इंजीनियरिंग पेपर कैल्सी इज अलाउड टू यूज इन द एग्जाम हॉल, तो तुम वैसे भी यूज कर सकते हो. इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, तो सी हियर हम क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स नॉट अवर सब्जेक्ट, बट हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. नहीं समझ में आया तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो. ओके, so what we will do here, we will see one example so you guys will get the idea. Now that diagram they are giving, they are saying find the current flowing through each resistor. But if you see in exam mostly यदि मेश एनालिसिस रहे या फिर कोई भी, वो सारे इसका तुमको डिराइव करने नहीं लगाते हैं. अब यहाँ पे तुमको ये तो पता चल गया कि दो लूप है तो यू विल गेट I1 एंड I2, और जो बीच का रजिस्टर है जो दोनों लूप में आ रहा है R3 40 ओम, ऑब्वियसली वहां पे I1 भी है I2 भी है. सो नाउ इफ दे आर सेइंग सारे करंट तो ओके, अदरवाइज दे विल से फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम, मतलब जो भी वैल्यू है दे विल गिव 1, मतलब 10 ओम का निकालने लगा सकते हैं, 40 ओम का, 20 ओम का, वो कोई भी, ये सारे वैल्यू वो निकालने लगाते नहीं है इन एग्जाम. बट if you want to find out I1, what you are supposed to do, you are supposed to solve linear equation solve करोगे तो I1 के साथ तुम्हें I2 का भी वैल्यू मिल ही जाएगा. ओके, सो सी हियर इफ दे आर गिविंग दिस एग्जांपल, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्टली वी विल सी हाउ मेनी लूप्स आर देयर. वी आर हैविंग टू लूप्स. नाउ वी विल गिव द डायरेक्शन टू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लूप. अभी हमारे पास दो लूप है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग द डायरेक्शन. सी हियर वी आर गिविंग द डायरेक्शन. जो रेड एरो है ये मैंने ड्रॉ किया है, यू कैन गिव. नाउ व्हाट वी आर सेइंग, वी आर सपोज टू अप्लाई केवीएल टू ईच एंड एवरी लूप. दो लूप है, सो फर्स्टली वी विल अप्लाई केवीएल टू द लेफ्ट हैंड साइड लूप. यू कैन गिव द नेम लूप 1, लूप 2. जो मैंने रेड साइड का एरो ड्रॉ किया है वहां पे तुम लिख सकते हो लूप 1. बाजू वाला जो है राइट साइड, यू कैन राइट देयर लूप 2. डायग्राम में भी लिख सकते हो, डायग्राम के नीचे भी लिख सकते हो.